Hello everyone. So today we are going to start chapter 5, that is animating text and objects. So before starting I would like to tell you how to start PowerPoint directly using the keyboard. You have to press window key plus R key on the keyboard. Window plus R. Okay, and you will find this run dialog box on the screen. Here you have to type POWER power PNT, okay, and then press the enter key and you will see PowerPoint has been opened. Okay, so this way, yeah, directly we can open the PowerPoint using the keyboard. Now I am opening a prepaid presentation from here. I am clicking on this new and you can see already some installed templates are there, some prepaid presentations are here. We can open any presentation as per our requirement. So I am opening this presentation and clicking on create. Okay, so this is already made presentation here before us. Now let us learn about the chapter, that is animating text and objects. So what is animation? Animation क्या होता है? Animation means we are going to move an object. एक object को हम move कर रहे हैं in any direction. Then that is called animation. Animation में क्या होगा? कोई भी object या text जब movement होता है उसमें, then that is called animation. So it is also written in your book, the ability to move objects like text, graphics, charts, logos, etc. in any direction of the slides is called animation. मतलब स्लाइड्स में हम कहीं भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइक पिक्चर्स को, शेप्स को जब मूव करते हैं, देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एनिमेशन. सो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई एनिमेशन. एनिमेशन को कैसे अप्लाई करते हैं एंड कितने काइंड्स के एनिमेशन हमारे पास होते हैं. सो लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट. सपोज मैं यहाँ पे मेरे पास इस स्लाइड में या फर्स्ट स्लाइड में ही मैं ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ. एक पिक्चर है फ्लावर की. I am taking this object and then I am clicking on animation tab. जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाना होता है, then firstly we have to single click on that object so that is selected. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं. Then we have to go in animation tab and here you will see custom animation. When you will click on custom animation, here you will find this new dialog box. एक नया dialog box आप यहाँ पे देखेंगे. And here you will see add effect option. Click on this add effect and you will see 4 main kinds of animations are here. So these are the kinds of animation: entrance, emphasis, exit and motion path. Okay, these are the 4 different kinds of animations. First is entrance. So what is entrance? Entrance means the way the object enters in the slide. किस तरह से हमारा object slide में enter होगा, that is entrance. Second is emphasis. Emphasis means the object when it comes in the slide, slide में आने के बाद में object के ऊपर कैसे focus डाल सकते हैं, आप उसको कैसे emphasize कर सकते हैं, that is known as emphasis. ठीक है, जैसे आप उसका font change कर सकते हैं, change font size, change font style, grow कर सकते हैं, shrink कर सकते हैं. So this way you can make the object more focused. ठीक है. Third is exit animation. Exit means that how the object disappears from the slide. स्लाइड में से ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ठीक है, किस तरह से डिसअपियर होगा. सो यहाँ पे हम ऐसे ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एनिमेशन हम लगाते हैं जो स्लाइड से जाएंगे. तो उनका जाने का क्या से मूवमेंट, कैसे जाएंगे वो. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जिट एनिमेशंस. ठीक है, मोर इफेक्ट्स के अंदर और मिल जाएंगे. एंड देन फोर्थ इज मोशन पाथ. मोशन पाथ में we can give a direction. एक हम डायरेक्शन बता सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लाइक अप से डाउन मूव करेगा या राइट साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा. ठीक है, या फिर हम कस्टम पाथ एक बता सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को किस तरह का मूवमेंट देना है. ओके, सो दीज आर द 4 मेन काइंड्स ऑफ एनिमेशन विच वी कैन अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट. सो लेट्स अप्लाई नाउ. सपोज ये फ्लावर है और इसमें मुझे एक एंट्रेंस एनिमेशन लगाना है. ये फ्लावर मेरी स्लाइड में एज फ्लाइंग करता हुआ है, ठीक है, ऊपर से उड़ता हुआ है. सो आई विल टेक दिस फ्लाई इन. ओके, व्हेन वी विल अप्लाई द एनिमेशन वी विल सी यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है. दैट मीन्स सबसे पहले जब स्लाइड शो स्टार्ट होगा
तो जब हम क्लिक करेंगे माउस से, स्टार्ट कब होगा, जब हम क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे माउस से तो डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम मीन्स बॉटम से ये फ्लावर हमारे पास आएगा। स्पीड इसकी वेरी फास्ट रहेगी। यहाँ से हम एरो में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड मीडियम या स्लो ले सकते हैं, डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं कहाँ से आएगा, ठीक है। सपोज मुझे टॉप से चाहिए, देन टॉप से, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली अगर हम क्लिक ना करना चाहें, हम चाहें डायरेक्ट आ जाए, तो हम यहाँ पे टाइम दे सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये आए, ठीक है। यहाँ पे डिले का टाइम होता है, कितने टाइम ये आए। एंड देन other properties also you can see, you have to right click here and you can click on effect options, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ साउंड भी आए, जब फ्लावर आए तो इसके साथ एक साउंड आए, then we can take a sound from here and एनिमेशन आने के बाद में ये डिम हो जाए या इसमें कोई कलर चेंज होता है, then that also we can apply from here, okay। So this way we can set a timing also, delay after how many seconds it should be displayed on the screen, its speed, all these things can be set and then click on OK. So this is the first animation which is applied, and now I am applying this contemporary photo album as the second animation. So just take this and then click on add effect. Suppose I want कि ये emphasis होता हुआ आए, grow shrink करता हुआ, तो I will take this for it, ठीक है। I will change the properties from here. Now let's see the slideshow how it's looking. You can see when I am clicking using the mouse, then the flower appears from the top. Then this contemporary photo album, this was the second animation, this is being shown, okay। So this way animation can be applied, okay। animation आप लगा सकते हैं objects में, and you can set the order, उनका आप order set कर सकते हैं। ये numbers आपके पास display होंगे यहाँ पे, जैसे मैंने इसमें लगाया था 1 2 3, तो ये ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ये रेक्टेंगल शो नहीं हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी आप देख पाएंगे ये 1 है, एंड देन ये भी शो नहीं हो रहा है, इसको भी रिमूव कर दे रही हूँ मैं। एंड यू कैन सी इसको मैं सेकेंड एनिमेशन बनाना चाह रही हूँ, देन आई एम पुटिंग एन एग्जिट एंड बॉक्स। सो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट एनिमेशन एंड दिस इज द सेकेंड एनिमेशन। यहाँ से डायरेक्ट आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑटो प्रीव्यू, और ये ऑटो प्रीव्यू से हमारा ऑटोमेटिकली प्रीव्यू होगा। जब भी हम कुछ एनिमेशन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रीव्यू होता है, ओके। सो दिस वे एनिमेशन कैन बी अप्लाइड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होते हैं, जैसे एनिमेशन हमने एक ऑब्जेक्ट पे लगाया था, एक टेस्ट पे या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, लाइक पिक्चर्स पे लगा सकते हैं, शेप पे लगा सकते हैं। ट्रांजिशंस आर अप्लाइड ऑन द होल स्लाइड्स। ट्रांजिशन हमारी स्लाइड्स पे लगते हैं। जैसे हमारी स्लाइड्स अभी आई थी नॉर्मल, तो वो एज ही सिंपल डिस्प्ले हो गई थी। वी कैन मेक द ट्रांजिशंस सो दैट द स्लाइड इज डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। हम इसमें कुछ ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, जैसे हमारी स्लाइड जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी, या स्टार्टिंग में जब स्लाइड डिस्प्ले होगी तो वो किस तरह से डिस्प्ले होगी, ठीक है। दैट काइंड ऑफ ट्रांजिशन कैन बी अप्लाइड, एंड यू कैन सी सो मेनी ट्रांजिशंस इफेक्ट्स आर देयर। You have to click on animation, and यहीं पे आपको transition effects मिल जाएंगे। You can click on this arrow and you can see so many transition effects are given here. So you can take any transition effect whichever you like. Suppose I am taking this transition. So हमारी सारी ये slides पे ये transition लग गया। You have to click on apply to all. अगर आप सारी slides पे ये लगाना चाह रहे हैं, then click on apply to all. And you can put a sound here. जब slide display होगी तो उसमें किस तरह का sound आएगा, take the sound also. एंड उसकी स्पीड कैसी रहेगी, यू कैन टेक द स्पीड, ओके। देन लेट्स प्ले इट। यू कैन सी दिस वे स्लाइड विल बी अपीयर्ड, ओके। सब पे लगाना है, देन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल एंड ऑल द स्लाइड्स विल बी अपीयर्ड लाइक दिस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट, ओके। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। यूजिंग दिस वी कैन अप्लाई द ट्रांजिशन। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स। As I have told you, in PowerPoint we can put sound. हम यहाँ पे sound लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं sound? Suppose here in this slide I am inserting a sound clip. यहाँ पे मैं एक sound clip लगा रही हूँ। कैसे लगाते हैं? We have to click on insert, then go in the sound option. You can see this is the sound option, and when you will click on the arrow, you will see so many options are given. हमारे पास already कोई sound या music पड़ा हुआ है, then we can take it from this option sound from file. और अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, तो आई विल यूज दिस ऑप्शन साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। क्लिक ऑन दिस एंड देन यू विल सी यहाँ पे हमारे पास साउंड सर्च करने के लिए आ गया है। ऑलरेडी कुछ मेड प्रीपेड साउंड्स भी है यहाँ पे। सो लेट्स टेक दिस साउंड ऑटोमेटिकली, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये साउंड आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द साउंड, ये हमारे पास यहाँ साउंड आ गया है। दिस साउंड बटन, दिस इज शोइंग दिस कि ये साउंड लग गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आइकन आपको ये शो कर रहा है कि साउंड लग चुका है। एंड हियर यू विल सी फॉर्मेट एंड ऑप्शंस, तो हमारे पास यहाँ पे अपने आप से टैब बन गए हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मेट वी कैन सेट द फॉर्मेट ऑफ दिस आइकन, जो साउंड का आइकन आया है हम इसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एंड यूजिंग द ऑप्शंस वी कैन टेक द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, साउंड की वॉल्यूम कितनी रखनी है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो प्रीव्यू हो जाएगा यहाँ पे, उसको फ्रंट में लाना है या बैक में करना है, या उसका हाइट विथ, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शंस, ठीक है। सो दिस इज द साउंड, यूजिंग द दिस बटन वी कैन प्ले द साउंड। जब हमारी स्लाइड प्ले होगी तो साउंड हमारा ऑटोमेटिकली प्ले होगा, प्ले साउंड ऑटोमेटिकली हो गया ना यहाँ पे। सो व्हेन क्लिक ले सकते हैं या प्ले अक्रॉस स्लाइड ले सकते हैं। सो वी हैव टेकन ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली जब स्लाइड आएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली साउंड प्ले हो जाएगा, ओके। एंड यू कैन टेक दिस ऑल्सो लूप अंटिल स्टॉप्ड, लूप मीन्स तब तक ये साउंड चलता रहेगा, खत्म होने के बाद भी ये साउंड अपने आप को लूप करेगा, मीन्स दोबारा से रिपीट होने लगेगा जब तक कि हमारी स्लाइड शो में हम खुद से उसको ना रोकें, ठीक है। और हाइड ड्यूरिंग शो में क्या होगा, हाइड अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो जब स्लाइड शो हमारा रन हो रहा होगा उस टाइम पे ये वाला आइकन हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं ये आइकन, ओके। सो दीज काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। एंड हमने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया था, लाइक हमने यहाँ पे लगाया था एक ट्रांजिशन इफेक्ट, so this transition effect was applied, that can also be set कि वो automatically आए या माउस क्लिक पे आए, ओके, कि आप माउस क्लिक पे चाह रहे हैं या ऑटोमेटिकली कितने सेकेंड्स के बाद वो ट्रांजिशन आए, ठीक है। तो यू कैन सेट दैट ऑल्सो यूजिंग दीज ऑप्शंस ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स। We can insert video also in our slideshow, हम अपने slideshow में वीडियो भी insert कर सकते हैं। We have to click on insert and then here on the movie option click on this arrow and you can see movie from the file, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कोई मूवी, ऑलरेडी कोई वीडियो पड़ी हुई है, then you can use this option and select that movie that will be inserted here, and if you don't have you can take online, okay। So using this option you can insert a video. The next thing is what are action buttons। action buttons क्या होते हैं? action buttons are some buttons which take us to another web page or email address or a file or a slide in the same presentation or in another presentation। एक्शन बटन को यूज करके हम एक पर्टिकुलर स्लाइड पे जा सकते हैं या एक फाइल पे जा सकते हैं अलग से, या किसी लिंक पे जा सकते हैं, ईमेल एड्रेस पे जा सकते हैं। मतलब हम उस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एक्शन उस बटन के साथ लगा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस एक्शन बटन पे क्लिक करें और हमारे सामने एकदम से ब्राउजर खुल जाए और कोई साइट खुल जाए, या ऐसा हो सकता है कोई फाइल खुल जाए या कोई दूसरी स्लाइड खुल जाए, ठीक है। सो यू कैन पुट द एक्शंस ऑन द एक्शन बटन। To insert action button, what you will do, you have to click on shapes and here you will see the option of action buttons and take the action button whichever you like. I am taking this one, then drag your mouse and you will see action button is placed here. इसके बाद में you will see this dialog box, mouse click and mouse over मीन्स जब हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट करेंगे, एंड जब माउस को ओवर करेंगे मीन्स माउस को उस एक्शन बटन के ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, यू कैन सेट हियर, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं माउस बटन पे जब हम क्लिक करें तो हमें वो एक्शन बटन कहाँ लेके जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे या प्रीवियस स्लाइड पे या लास्ट स्लाइड पे, या फिर मैं चाह रही हूँ लास्ट स्लाइड पे ले जाए, ठीक है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लास्ट स्लाइड, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए ऑप्शन, देन ऑल्सो यू हैव ऑप्शन ऑफ URL। URL मीन्स एक पर्टिकुलर वेबसाइट, आप इंटरनेट पे आपकी कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई एड्रेस आप वहाँ पे लिखेंगे उस एड्रेस पे ले जाएगा, ओके। सो आई एम टेकिंग लास्ट स्लाइड। तो जब हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लास्ट स्लाइड पे ले जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दिस प्ले साउंड एंड यू कैन इंसर्ट अ साउंड ऑल्सो हेयर। जब हम साउंड इंसर्ट कर देंगे तो वो जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो साउंड प्ले होगा और लास्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। एंड माउस ओवर पे क्या होगा, दैट ऑल्सो यू कैन सेट फ्रॉम हेयर एंड देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन बटन। यूजिंग दीज बटन्स वी कैन डू एनी एक्शन वट एवर वी लाइक। सो अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ड्यूरिंग द स्लाइड शो देन इट विल टेक अस टू द लास्ट स्लाइड, ओके। हाइपरलिंक भी ऐसे ही होते हैं, वी कैन इंसर्ट द हाइपरलिंक, क्लिक ऑन इंसर्ट देन हाइपरलिंक एंड इट इज आस्किंग कि कहाँ से हाइपरलिंक करना है, आपको किस चीज से लिंक करना है इस डॉक्यूमेंट को। तो आप यहाँ से ले लेंगे, आपको जिस भी चीज से हाइपरलिंक करना है, जो भी चीज ओपन करनी है, सपोज ये वाला हाइपरलिंक चाहिए, देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो लिंक खुल जाएगा, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसका हाइपरलिंक बन गया है, वो एड्रेस जो हमने लिया था
तो जब हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो लिंक खुल जाएगा जो हमने हाइपरलिंक में सेट किया है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड. मीन्स MS वर्ड से डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना के वहाँ से वो डेटा MS पावरपॉइंट में इंपोर्ट कर सकते हैं. फॉर डैट फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड. सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे MS वर्ड में. सो आई एम ओपनिंग द वर्ड हेयर. ठीक है, MS वर्ड मैंने यहाँ पे लिया और मैं इसको ओपन कर रही हूँ. आई एम टाइपिंग सम हेडिंग्स हेयर लाइक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर and Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. These kind of headings I have made. Suppose let's click on it and then click on heading 1, then click on it and then take heading 2, click on this and then make it heading 2 again. Okay, suppose this kind of document we have created in MS Word. Now let's save it using this save as, and here I am writing types of software. Click on save. Okay, now let's import it in PowerPoint. PowerPoint में कैसे import करेंगे इसको? Click on this new slide arrow button. यहाँ पे आप arrow button पे click करेंगे, you will see slides from outline. You have to click on this option slides from outline. And here you will see कि MS Word के documents आ रहे हैं. You can take the document whichever you want to import. ठीक है, जो भी आपको document import करना है, click on there and then click on insert. ठीक है, it is saying that it cannot open this file because it is opened by it is used by the another user. So for that firstly we have to close it. Save हो गया, then we have to close it. इसको close करना होगा. Then now you can insert it. Click on this new slide. Drop down arrow, slides from outline, and then this insert. You can see slide has been inserted. जो भी हमने वहाँ टाइप किया था that is displayed as a slide show here. यहाँ पे हमारे पास as a slide यहाँ पे वो display हो गया है. Okay children, so the chapter is completely explained to you. I hope it is understood to you now. So now you have to try to complete the exercises yourself. If you have any problem, any query, then you can ask. So children, this much for today. Thank you. Bye bye.